Action. Hi, my name is Payal. My age is 19. I am 5 foot 5 inches tall. I am born and brought up in Rohtak, Haryana, but presently I'm living in Bombay. I have all the questions here that I have to answer, or the things that I have to talk about. In my family, we are four. My नानी, मेरी माँ, उनकी दो बेटियाँ, मैं और मेरी बहन. हम चार बिल्लियों की तरह हैं. मतलब सबको अपना स्पेस भी चाहिए और सबको प्यार भी चाहिए. तो लेकिन एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को नहीं समझ सकती. सो घर हमेशा गर्म रहता है, तंदूर की तरह. बट ठीक है, जो है सो है. हॉबीज़ एंड पैशन. मुझे खाना खाना बहुत पसंद है. दैट्स माई आई वुड से ओनली hobby I have. Otherwise, everything that I do with passion. So I'm not somebody who's like सिर्फ एक्टिंग ही मेरा पैशन है. मुझे जो भी करना है लाइफ में वो पैशन के साथ ही करना है. अगर वो चीज़ में अगर पैशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट थिंग. So for me it's like anything, even breathing, I have to do it passionately. So yeah, I'm just passionate about life. I want to live a passionate life, where every day I am just learning something new, seeing something new, hearing something for the first time, and I'm just flowing, like there's no resistance. And I think that's what is I'm looking for in general every day in my life. Tricky questions. Your gang of friends, and what is special about them? Sorry to say, I have no gang of friends. I used to had, but then I realized it sucks. You can't keep everyone happy. At the same time, I'm a cat, so it's not my thing to really pacify or make happy everyone. मतलब I am somebody, मैं अगर आपके साथ हूँ, I'll give my 1000% to make you happy, and will do things that will bring joy around you. But if I'm not there with you, then I can't keep that relationship over a phone or a chat. That's not my thing. I'm really bad at it. कि आप अपने दोस्तों से दूर हो तो आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे उनसे बातें करते रहोगे. मैं नहीं करती. बिकॉज फॉर मी, वेर एवर आई एम, दैट्स माई ट्रूथ. इफ़ आई एम इन दिस रूम, then I have to make memories with this room. Otherwise, I'm going to, if I am here and I'm thinking about someone else or somebody else, then I'm missing where I am. So, yeah, right now I don't have a gang of friends. And I think I'm happy because it's fine. I'm very bad in communication. So, people get a headache to me because when I am not able to express myself, then it's fuck up. What's your take on life? Thank you for asking this. Life is very, very difficult. It is. And I am also very, 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 very difficult. So it makes my life very, 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 very difficult. So that's my take on my life. What makes me vulnerable? I think I'm vulnerable all the time. Since I came into acting and I'm being exposed to art and I'm following my impulses, I'm always vulnerable. If I'm following my impulses, then I'm vulnerable. Because I'm not somebody who is into planning, who likes to plan, or I just go, and if it is going to happen, then I do it, and I don't think about whether I should do it or not, because I'm very impulsive. So if I'm on my impulses, which I generally am on my impulses, so I'm always vulnerable.
but what's my strength is that I'm independent, and that's the only weakness I have, that I'm independent. I uh, I don't know what would I do if I'm not independent. So that's my strength and that's my weakness. What you aspire to be? क्रांतिकारी. मुझे रोज़ ही ऐसा लगता है कि इससे पहले भी मैं पैदा हुई हूँ और मैंने देश की आज़ादी के लिए ज़रूर लड़ाई करी है, क्योंकि मैंने अपने करियर के लिए भी अपनी लाइफ में भी हमेशा लड़ाई करी है. कुछ भी चीज़ मुझे करनी होती तो मुझे ऐसी परमिशन नहीं मिली. आई हैड टू फाइट फॉर इट. एंड मुझे वो, मैं इंक्लाइंड भी हूँ जब मैं किसी मूवमेंट के बारे में पढ़ती हूँ या किसी रेवोल्यूशनिस्ट के बारे में पढ़ती हूँ कि उन्होंने ऐसे किया था, वैसे किया था, वहाँ पे अबॉर्शन रोकने के लिए ये हुआ था. तो मेरे अंदर वो ब्लड है. इट्स वेरी फायरी कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग द चेंज, बट आई एम नॉट समबडी हु विल गो एंड लोगों को वो ज्ञान दूंगी कि वी हैव टू बी द चेंज, ये और वो, और आई एम पुटिंग स्टोरीज, लेट्स ब्रिंग चेंज. आई एम समबडी हु जस्ट who does it. अगर लगेगा तो I'll go and I'll do it. एंड उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो जिस तरीके की क्रांतिकारी अब इस टाइम में, यानी आई मीन जो दौरान मैं जी रही हूँ, जहाँ पे जिस ईयर में मैं जी रही हूँ, तो मेरी क्रांति सिर्फ मेरे आर्ट के थ्रू ही बाहर आ सकती है. अ वॉइस दैट इज़ इनसाइड मी, आई रियली वांट टू ब्रिंग इट आउट, एंड दैट्स व्हाट आई एस्पायर टू. कि अगर मैं काम करूँगी तो वो हज़ारों साल रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे जितने आने वाले मेरे जाने के बाद, वो मेरी आर्ट से कभी ये फील ना करें कि वो अलग हैं या उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा या वो अकेले हैं. कि कोई था उनके जैसा भी जो उन्हीं की तरह समझता था, उन्हीं की तरह फील करता था. बिकॉज़ मैं जिनकी फिल्म्स देखती हूँ या जिनके बारे में पढ़ती हूँ या जिनके गाने सुनती हूँ या जो भी करती हूँ, तो मुझे वही कनेक्ट फील होता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं इस बंदे के साथ रेजोनेट करती हूँ. मतलब किसी ने मुझसे पहले भी ऐसा फील किया, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ जो मैं ऐसे फील कर रही हूँ. तो या मैं एक रेवोल्यूशन लाना चाहती हूँ अपनी आवाज़ से आर्ट में. तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, करती रहूँगी. I think I have not answered this question. Extracurricular activities. So I've always been a kid जिसको दूसरी चीज़ें करने में हमेशा मज़ा आता था, सबसे आगे क्लास में दूसरी चीज़ें करने में. क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि आई एम अ डूअर. तो जहाँ पे आपको डू करने का मिलता है ना, दैट्स माई हैप्पी स्पेस. वेयर यू आर प्लानिंग, thinking about doing it, that's not me. I'm a doer. If I have to, and I think extracurricular activities is the only place where you can do. You don't need to plan first, ये करो वो करो, you just go and you do it. डांस करना कर क्या हो, कर रहे हो आप, और उसको करते करते आप फील कर रहे हो. कुछ खेल रहे हो तो उसको, उसमें आप इन्वॉल्व हो, आपकी बॉडी चल रही है, इम्पल्सेस चल रही है, आप इतना कुछ फील कर रहे हो उसको खेलते खेलते. तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमेशा से पसंद है. मैं किसी भी चीज़ में फॉर्मली ट्रेन नहीं हूँ, बट मैंने अभी हॉर्स राइडिंग सीखी थी, तो मैं हॉर्स राइड कर सकती हूँ. मैंने कलरी फाइट सीखा, जिसमें आपको स्वॉर्ड चलाना, स्टिक फाइटिंग कराना, एनिमल की वॉक्स, ये सब सिखाया जाता है, मुझे भी सिखाया गया था. और आर्ट, आई थिंक विदाउट आर्ट आई एम नथिंग. द ओनली वे आई वॉज एबल to understand, you know, that वो क्या चीज़ है जो इतना ट्रबल कर रही है अंदर, that I could understand through art only. तो I think without art I'm nobody, and art has chosen me, and I have also chosen my art. So I have a deep relationship with art because it taught me to see, hear, and be, because if I was not in art or was not doing acting, then probably I would have been also like, what would I have been doing down the line 5 years. ये सभी प्लान कर रही होती मैं भी.
ये, बट जो आपके सामने है आप वो मिस कर देते हैं। आर्ट से सिर्फ मैंने यही सीखा कि जो आपके सामने है, जो आपके पास है, उसको आप कितना ज़्यादा महसूस कर सकते हो। दूसरा म्यूज़िक, म्यूज़िक मेरी जान है। मुझे लगता है कि म्यूज़िक एक गिफ्ट है यूनिवर्स का हम लोगों को, कि वो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है। सिंपलेस्ट एज इन कि वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता आपको बहुत ज़्यादा। अगर कोई व्यूअर है या ऑडियंस है, फ़िल्म देखने के लिए, बुक पढ़ने के लिए उनको टाइम निकालना पड़ता है, उनको 2 घंटे फ़िल्म देखने के लिए अपने देने पड़ते हैं, तब जाके वो उस जर्नी में कहीं अपने आप को पाते हैं या कनेक्ट करते हैं। लेकिन म्यूज़िक के लिए इट्स लाइक ऐसे आप कनेक्ट हो जाते हो। और म्यूज़िक मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने सिर्फ एक स्टांजा में बोल दी गई हैं, जो शायद कोई अपने 5 साल से एक रिलेशनशिप में फ़ील कर रहा था, वो पेन, वो सॉरो, हैप्पीनेस, वो सब हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो म्यूज़िक में सब बयां कर देते हैं। एंड आई थिंक इट्स द ईजिएस्ट वे टू टच अ सोल, मतलब जो फास्टेस्ट वे बोल सकते हैं, इफ़ दैट्स द राइट वर्ड। सो आई थिंक म्यूज़िक इज़ अ गिफ्ट टू एवरी इंडिविजुअल, एंड आई एम somebody who likes to explore music, so I keep on like listening different music, different music in different languages. So yeah, and I aspire to be a singer someday, but I know I have a very bad voice, but I'll do it before I die. I'll at least will sing a song, will try to record one song. I think and yeah, so the last thing that I have to tell you about is the crazy story. I don't know मैंने अभी तक क्या क्या बोला। मुझे इतना पता चल रहा है कि मैंने सेंटेंसेस बहुत गलत बोले हैं, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो। अटक रही हूँ मैं, एंड आई डोंट नो वो क्यों अटक रही हूँ, क्योंकि कुछ नहीं, समथिंग पर्सनल, बट एनी वे द क्रेजिएस्ट थिंग दैट आई एवर डन इज़ लाइक आई वेंट फॉर अ सोलो ट्रिप। मुझे भूटान जाना था, मैं भूटान के लिए निकली। ट्रेन से मैंने अपनी जर्नी प्लान की, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास। तो भूटान जाने के लिए आपको ट्रेन से जाते हो तो फुनसिलिंग बॉर्डर तक जाना होता है, और उसके बाद आप वहाँ से वहाँ की कैब वैब लेके भूटान जा सकते हो। तो कुछ टाइम पहले मेरा एक फ्रेंड गया था, तो तब वो आधार कार्ड के बेसिस पर गया था, लेकिन अभी जो है वहाँ पे डिस्क्लेमर मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप जाना चाहें तो पासपोर्ट या फिर वोटर आई कार्ड चाहिए। मेरे पास दोनों में से कुछ नहीं था, आधार कार्ड था। तो वो गया था, उसने बोला एम्बेसी लेटर इशू कर देती है, एंड आई वाज लाइक ठीक है कर देती है, तो चलो रिस्क लेते हैं। मैंने 7 दिन का अपना प्लान किया, मैं चली गई। मैंने किसी को नहीं बताया मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब इतना बताया कि मैं इस जगह जा रही हूँ, बट मैं एक्चुअली वहाँ नहीं थी। तो 7 दिन के लिए मैं घर से दूर हूँ। टच था उनका कि हाँ मैं हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता एग्जैक्टली मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, क्या कर रही हूँ। क्योंकि मैंने बोला था मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मुझे प्रोजेक्ट के लिए जाना है, असाइनमेंट वगैरह, और अपने फ्रेंड के पास जाना है। तो मैं वहाँ पे थी, और होली था उस टाइम, तो वैसे भी घर वाले बिजी थे होली। अब मैं वहाँ पहुँची, मैंने सोचा रोना धोना करेंगे, अगर ज़्यादा ड्रामा करेगा। घर से प्लान थी, क्योंकि पता है कि आपकी गलती है तो आप फंस तो सकते हो। भाई हुआ जाते उसने बोल दिया कि आपने साइट नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा मैंने मन में सोचा मैंने तो साइट पढ़ी थी, साइट पर लिखा भी था कि आप बिना पासपोर्ट के या वोटर आई कार्ड के नहीं आ सकते। फिर मैंने झूठ बोल दिया, मैंने कहा नहीं सर मैंने तो नहीं पढ़ा, मेरा तो फ्रेंड आया था, उसने बोला आधार कार्ड पे होता है, मैं आ गई सर। वो तो इतने गुस्से में आदमी था कि वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, उसने मेरी वहीं पे इतनी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। इतने वहीं पे उसी टाइम मुझे एक बंदे मिले, अंकल मिले थे, अंकल भी नहीं बोलूँगी, भैया जैसे होंगे, 35 ही वॉज। और वो भी भूटान जा रहे थे, उनका बिजनेस था। तो उन्होंने तब मुझे ट्रेन में बोलता कि वाई मतलब इससे अच्छा तो तुम सिक्किम चली जाती, तुम भूटान क्यों आई। मैंने कहा ठीक है अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी सिक्किम। वैसे मैं इतनी डरी हुई हूँ, और भी लोग डिस्करेज कर रहे हैं कि सिक्किम चली जाती, यहाँ क्यों जा रही हूँ। मुझे पहले ही नहीं पता था मैं क्या करूँगी यहाँ पे। फिर वो भी मेरे साथ एम्बेसी गए थे कि आउट ऑफ कर्टिसी उन्होंने कहा चलो चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी तुम्हारा करा के फिर चल जाऊँ। अब मैं मन में तो ऐसे हो रही थी कि क्योंकि मुझे नहीं पता था बेसिक, तो उन्होंने कहा मैं हेल्प कर देता हूँ। तो उनको वो मुझसे ऐसे देख रहे हैं, तुम घर से आ गई बिना डॉक्यूमेंट्स के, और मैं ऐसे थी हाँ आ गई, क्या करूँ, मुझे आना था। अब जो होता वो यहाँ होता, मैं जब तक देखती नहीं मैं विश्वास कैसे करती कि मैं नहीं जा सकती थी। लिखा होने को तो कुछ भी लिखा हो सकता है, तो जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा, मुझे मना नहीं किया जाएगा, तब तक तो मैं नहीं मानूंगी। तो मैं निकल आई थी घर से। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है अब एक काम करते हैं, तुम्हें सिक्किम भेजते हैं। तो उन्होंने कुछ अपना काम ख़त्म किया, हम वापस सिलीगुड़ी पहुँचे, और वहाँ से
कार पूल होके जाती हैं, तो एक जीप जैसी थी, उन्होंने मुझे उस पर बैठा दिया। तो इट वॉज़ लाइक 7:30 के बाद का टाइम हो गया था, और ऊपर चढ़ते हो तो आपका नेटवर्क बंद हो जाता है, तो नेटवर्क नहीं है उस कार में। सारे मेल थे, मैं अकेली फीमेल थी, और मेरी डर से फटी पड़ी है। किसी को नहीं पता मैं कहाँ हूँ, और मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब बचूँगी नहीं बचूँगी, घर जाऊँगी नहीं जाऊँगी। बट आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे जितने भी सोल मिले, दे वर काइंड सोल, एंड इन फैक्ट आई मेट सोल्स, नॉट इवन बॉडीज़, जो बहुत ज़्यादा ब्रेनी हो। उन्होंने मेरी जेन्युइनली हेल्प करी। तो मैं जितने भी लोगों ने मिली, मुझे एक ने दूसरे ने तीसरे, ऐसी चीज़ें फॉलो होती रही। फिर मैं वहाँ पहुँची। 7 दिन मैंने बहुत मज़े किए। एक दिन मैंने होटल ले लिया, और हर दिन अलग अलग बुक कर देती थी। तो एक दिन मैंने थोड़े पैसे बचाने के लिए 300 वाला बुक कर दिया। तो जैसे मैं उसमें घुसी, तो बस मुझे बस ये फीलिंग आ रही थी कि अब कब रेड पड़ने वाली है, मेरे को कब पुलिस लेके जाने वाली है। वो इतना शेडी होटल था। जाते ही थोड़ी देर में लाइट चली गई। वहाँ पे ऐसे छोटे वाला बॉक्स वाला टीवी था, वो पड़ा था। बेड भी पलंग वाला बेड था। और बस मैंने बस ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके राम हनुमान श्याम, जितने मेरे पास प्लेलिस्ट में भगवान जी के नाम के गाने थे, सब चला के उस रात को दिन में कन्वर्ट करने के लिए बस गुजारी है मैंने। और उसके बाद जब मुझे वापस आना था, तो ये एडवेंचर यहाँ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जब मैं वापस आ रही थी, तो मेरी क्या हुई, ट्रेन कैंसिल हो गई। मतलब मैं सिलीगुड़ी में हूँ, मैं अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ, यार मेरे ना ट्रेन का सीट नंबर नहीं आया, तो चेक करियो क्या हुआ। उसने देखा, उसने कहा ट्रेन कैंसिल हो गई। ट्रेन ही कैंसिल नहीं हुई ना, 6 ट्रेन कैंसिल हो गई, और मेरी फटी बढ़िया। वो बोल रहा है कि फिर कुछ और तरीका देखते हैं, बस से देख रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा, ट्रेन जा नहीं रही, प्लेन देख रहे हैं, 19,000 की टिकट है। एंड आई वाज लाइक डूड, आई डोंट हैव 19,000, 2,000 रुपये बचे हैं मेरे पास, मैं क्या करूँ, घर तो जाना है। एंड उसने कहा एक ट्रेन है जो शायद जा रही है, तुम स्टेशन भाग। और मेरे पास आई थिंक 30 मिनट्स थे, तो फटाफट भाग गई स्टेशन के लिए। चेकआउट किया, सामान वामान ऐसे ही बस बांधा और भाग गई। मैं स्टेशन पर जाती हूँ, भागते भागते टिकट काउंटर पहुँची, और उनको बोला, मैम मुझे ना एक टिकट चाहिए। और वो मैम मुझे बोलती है कि आप जिस ट्रेन के लिए आए हो वो तो ट्रेन है ही नहीं। और मुझे लेजिट गुस्सा आ रहा है, और मैंने उसको फ़ोन मिलाया। मैंने कहा साले तेरे को पता नहीं है, ट्रेन नहीं है, मुझे भेज दे, मैं भागते भागते आई हूँ, वैसे मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ, और तो मेरा दिमाग ख़राब करा, ये है वो है वो है। मैं बोल रही हूँ, फ़ोन रख दिया। और फिर मैंने कहा, फिर उसने बोला आप रिजर्वेशन काउंटर पर चले जाओ, वहाँ पूछ लो कोई ट्रेन है तो वहाँ जाके टिकट ले लो। मैं गई, थोड़ा सा दूर था, बाहर निकल के, और फिर मेरा ट्रैक बैग इतना बड़ा, मुझसे भी बड़ा, उसमें मैं ऐसे मेरे कंधे ऐसे भागती हुई जा रही हूँ। फिर पहुँची वहाँ पे, मैंने उनको बोला कि आप इंक्वायरी कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा वहाँ पे। तो एक अंकल थे एजेंट, उन्होंने बताया राजधानी की 5,000 की टिकट है। मैं कह रही 5,000 भी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे घर जाऊँगी, मैं किसको फ़ोन करूँ, झूठ बोल के आई हूँ, फंस जाऊँगी। तो फिर उन्होंने बोला आप किस ट्रेन के लिए आए हो। मैंने कहा मैं इस ट्रेन के लिए आई थी। तो उन्होंने ऐसे चेक किया होगा अपने फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा ये तो खड़ी है। और मैं सोच रही हूँ, मैं 30 मिनट से स्टेशन पे घूम रही हूँ अपना, इधर से उधर, और ट्रेन खड़ी हुई है, वो जाने वाली है। और अब तो मुझे और भी बुरा लग रहा है अगर वो छूट गई तो मैंने तो अपना बैग उठाया, फटाफट भाग रही, फिर से सीढ़ियाँ ऊपर सीढ़ियाँ नीचे, जैसे ही उतरी सामने ट्रेन, ऐसे लंबी सांस ली। इधर देखा अटेंडेंट खड़ा, मैंने कहा ये दिल्ली जाएगी, कहाँ जाएगी। फिर मैंने कहा मेरे पास टिकट नहीं है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, चढ़ जाओ। फिर मैं चढ़ गई, फिर मैंने उसे सेटिंग करी, चलो 2,000 दिए, ये वो हुआ। उसके बाद उसने मुझे एक सीट दी, 2 घंटे बाद वहाँ से उठा दिया। दूसरी सीट दी, 2 घंटे बाद वहाँ से उठा दिया। रात हो गई, वो फिर आया मेरे पास। मैंने उसको सीधा बोला था कि मैं अब नहीं उठूँगी, अब तो मैं यहीं सोने वाली हूँ, तो जो मर्ज़ी कर। फिर अंकल ने पूछा क्या चल रहा है, जिनके साथ मैं सीट शेयर कर रही थी। तो मैंने बताया उनको ऐसी ऐसी सिचुएशन है, 2,000 ले लिया, अब सीट नहीं दे रहा, कह रहा ट्रेन पैक है। तो अंकल ने बोला मेरी एक सीट खाली है बेटा, आप ले लो, और मेरी बेटी मेरे पास हो जाएगी, मैं आप के पैसे वापस कराता हूँ, आप एक काम करो उसके पास जाओ और हल्ला मचा दो। तो मैंने मचा दिया हल्ला। मैं बाहर गई, मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, ये वो। और लड़की ने हल्ला मचाया, मतलब अटेंशन, वी अटेंशन की तरह, जो सारे के सारे सब ऐसे खड़े होकर देख रहे कि क्या हो गया। फिर अंकल आए, अंकल ने कहा बेटा तुम जाओ। फिर अंकल ने से धमकाया, एक तो तू इलीगल काम कर रहा है, दूसरी लड़की को टिकट नहीं, सीट नहीं दे रहा, या तो एक काम कर आधे पैसे वापस दे, नहीं तो उसको भी उतारते हैं और तेरे को भी पुलिस के पास देते हैं। मान गया, 1,000 वापस दे दिया, 1,000 मेरे को दे दिया उसने। फिर मैं सो गई, हम सब सो गए। अंकल को उतरना था 4 बजे अपनी फैमिली के साथ। तो अंकल को जाके कहता है कि अब तो आप उतर रहे हो, अब कौन उसकी मदद करेगा। कितना बीप आदमी था वो। तो अंकल वापस आए, अंकल ने कहा बेटा मैं उतर रहा हूँ, ये मुझे ऐसे बोल रहा है, या मेरा नंबर ले लो, अगर कुछ भी होगा ना आप मुझे कॉल करना। एंड आई वाज लाइक ठीक है अंकल।
फिर कुछ हुआ नहीं। अगले दिन मेरी को 12 बजे उतरना था, 11 बज गए थे। स्लो ट्रेन चलती है, जब आपको पता चल जाता है कि वो बाउंड्री पे है, तो दिल्ली तक पहुंचने वाली थी तो चल रही थी छुप छुप छुप, और हम ऐसे बैठे हैं और कोई भी नहीं उस ट्रेन में, मतलब काफ़ी लोग उतर चुके थे। तो इतने में टीसी आता है, तो टिकट, तो वहाँ अटेंडेंट खड़ा था, और अटेंडेंट बड़ा एटीट्यूड के साथ खड़ा कि अब तो फंसेगी, अब क्या होगा इसका। मैंने भी कहा उसके पास है, तो मुझे देख के आ रहा है मेरे पास नहीं। मैंने कहा मेरे से पैसे नहीं है, इसने पहले 2000 लिए थे, सीट नहीं थी, अब 1000 लेके बैठा है। फिर टीसी ने कहा तुम दोनों लड़ना बंद करो, 1000 दो, मैं तुम्हारी टिकट काटता हूँ। मैंने दे दी। मैंने कहा मेरा तो वैसे नुकसान हो रहा था, जो 1000 बचे थे वो भी चले गए, दे दे मैंने उसे। अब उसने क्या किया कि मेरे को टिकट ही नहीं दी और चला गया। और मैं भी इतनी बुद्धू, मुझे पता ही नहीं था टिकट लेनी चाहिए, कुछ तो रिसिप्ट लेनी चाहिए ना कि मैंने फ़ाइन तो भरा है 2000 रुपये, वो भी जेब में डाला अपना, चलता बना। मैंने कहा बढ़िया हो गया ये। अब मैं उतरी, अब मुझे ये पता था कि प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होती है, फिर फ़ाइन करते हैं। अब मेरी जेब में रुपया नहीं था कि मैं फ़ाइन भी अफोर्ड कर सकूँ। मैं उतरी, मैंने ईयरफोन लगाए, स्वैग बैग टांगा और चलना शुरू करा, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मैं रोज़ ही इसी ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ। और जैसे मैं जा रही हूँ, मेरे आगे, जस्ट आगे एक बंदे को टीसी ने रोक दिया। मतलब इतना सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हुआ कि मैंने देखा नहीं, सोचा नहीं, इतनी स्विफ्ट मूवमेंट ली और निकल गई। और उसके बाद मैं रुकी नहीं, मुड़ी नहीं, पीछे नहीं देखी। और मैं सोच रही हूँ फाक। मैं ऐसे पीछे मुड़ के स्टेशन पर देखा, फिर मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा आई एम अलाइव, आई एम सेफ, आई एम होम, आई एम ग्रेटफुल। मैंने कहा ओ माय गॉड। उसका ऐसे बाबा जी, मुझे और एडवेंचर नहीं चाहिए लाइफ में, अब थोड़े दिन घर में बंद रहना है, कहीं नहीं जाना मुझे। मतलब इतना ज़्यादा एडवेंचर हो गया, शायद मैंने भी जिस एनर्जी में बताया आपको ना समझ आ रहा, बट इट वॉज लाइक फुल ऑफ एडवेंचर, एंड दैट्स द ओनली क्रेजी थिंग आई थिंक आई डिड। ऐसी नहीं है, वैसे मैं रोज़ ही कुछ क्रेजी भी करती रहती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ, कभी भी चली जाती हूँ। वही मेरा क्रेजीएस्ट पार्ट है कि मैं कर देती हूँ, मैं सोचती नहीं। 20 मिनट से मैं आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आप मेरा देखेंगे नहीं देखेंगे। अगर आप देखते हैं तो थैंक यू सो मच, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। बाय।